નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં હું પીનલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। આજે વાત કરી રહ્યા છે જમ્મુમાં થયેલ ડ્રોન હુમલાની। જમ્મુમાં હાલમાં જ 2 દિવસ પહેલા એરફોર્સ સ્ટેશન પર હુમલો થયો હતો। ડ્રોન અટેક બાદ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું ને આ બધા વચ્ચે જમ્મુના સુંજવાન મિલિટરી સ્ટેશન પાસે ફરીથી એક ડ્રોન જોવા મળ્યું છે। જો કે આ ડ્રોન હુમલો છે આતંકી હુમલો છે કે હજી એની પાછળ રિસર્ચ ચાલી રહ્યું છે। સેનાએ આ વાતનો ઇનકાર કરી દીધો છે। બીજી બાજુ કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય હવે જમ્મુ એરફોર્સ સ્ટેશન પર થયેલા ડ્રોન હુમલાની તપાસની જવાબદારી નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીને સોંપી દીધી છે। સોમવારે મોડી રાત્રે લગભગ 2:30 વાગે આ ડ્રોન જોવા મળ્યું છે, જે થોડા સમય બાદ ગાયબ પણ થઈ ગયું છે। સુરક્ષા દળોએ આ ડ્રોન કુંજવાની સુજવાન કલુચક પાસે જોયું છે। સેનાને મોડી રાત્રે આ ડ્રોન અંગે જાણકારી મળી હતી ને આ પહેલા રત્નુચકમાં રાત્રે 1:08 અને ત્યારબાદ કુંજવાનીમાં 3:09 જોવા મળ્યું અને કુંજવાનીમાં સવારે 4:19 વાગે આ ડ્રોન જોવા મળ્યો। તો આ પ્રકારના ટાઈમિંગ્સ અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે। સેના તરફથી ડ્રોન પર ફાયરિંગ નથી કરાયું અને આ મામલે તપાસ ચાલુ છે। હવે સવાલો એ ઊભા થાય છે કે ખરેખર આ જે રીતે ઘટનાઓ વારંવાર જોવા મળી રહી છે, જે રીતે ડ્રોન અટેક જેને કહેવામાં આવી રહ્યું છે, એકચ્યુઅલમાં એ છે શું ખરેખર આતંકીઓ હવે ડ્રોનને બનાવી રહ્યા છે આતંકનું હથિયાર? શું ખરેખર આ પાકિસ્તાનની નાપાક હરકત પણ હોઈ શકે છે? કારણ કે જ્યાં આ ડ્રોન જોવા મળ્યું છે તેનાથી ખૂબ જ ઓછા કિલોમીટર દૂર છે, 14 કિલોમીટર જેટલું દૂર છે બોર્ડર, અને ત્યાંથી જ્યારે આ પ્રકારની ઘટના ત્યાં સામે આવી હોય અને તેની સાથે જ્યારે બિપિન રાવત એવું કહી રહ્યા હોય કે આગામી દિવસોમાં આપણે આ પ્રકારના યુદ્ધ માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ, તો ભારત કેટલું તૈયાર છે અને તેની સાથે જો આ પ્રકારના ડ્રોન જોવા મળી રહ્યા છે તો ભારત કેટલું સુરક્ષિત છે અને ખરેખર જો આતંકીઓ હવે આ ડ્રોનને આતંકનો હથિયાર બનાવી રહ્યા હોય તો ભારત દેશ તેની માટે કેટલું તૈયાર છે? ભારતનું ડિફેન્સની વાત કરવામાં આવે તો એ કેટલું તૈયાર છે તેના મુદ્દા પર ચર્ચા કરીશું। સાથે જ આ ડ્રોનની જે ઘટના જોવા મળી છે તેને પણ ટેકનિકલી સમજવાનો પ્રયાસ કરીશું। પહેલા પણ આવું ક્યારે જોવા મળ્યું છે તેના વિશે પણ વાત કરીશું। આ તમામ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે મારી સાથે અહીંયા જોડાઈ ગયા છે બ્રિગેડિયર વિજય સાગરજી, બ્રિગેડિયર પ્રોફેસર વિજય સાગરજી આપણી સાથે છે, રક્ષા વિશેષજ્ઞ લલિત રાવલજી પણ આપણી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા છે। આ બંનેનું સ્વાગત છે ડે સ્પેશિયલમાં। विजय सागर जी, सबसे पहले ये जो ड्रोन हमें जिस तरह से देखने मिला है और जिस तरह की ये जो घटना सामने आ रही है वो क्या है उससे टेक्निकली समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बात ड्रोन की है तो आप ड्रोन एक्सपर्ट भी हैं और ये बात को बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, क्योंकि इससे पहले 2 दिन पहले ही इस तरह का ड्रोन देखने मिला, अलर्ट जाहिर हुआ, फिर दो दिन बाद फिर से ऐसी घटना देखने मिल रही है और जैसा कि ये बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की हरकत हो सकती है, ये आतंकियों का ड्रोन अटैक हो सकता है। आपका क्या मानना है विजय जी? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये एग्जैक्टली ड्रोन अटैक नहीं है। ये एक क्वाडकॉप्टर छोटी सी डिवाइस है जो कमर्शियली ऑनलाइन भी अवेलेबल है, क्योंकि अगर ये ड्रोन अटैक होता तो ये जो उन्होंने अटैक किया है, जो अपना टारगेट चुना है, वो एक बहुत ही क्रेडिबल टारगेट चुनते और उसमें यानी कि कोई हवाई जहाज उड़ाया जाता या कोई ऐसा सीरियस नुकसान किया जाता। जैसे कि ड्रोन अटैक किया था हुती रेबेल्स ने यमन में और सऊदी अरेबिया की अरामको ऑयल रिफाइनरी को उड़ा दिया था। उसका ड्रोन अटैक किया था अमेरिका ने, जो कि जनरल सुलेमानी जो को इराक के एयरपोर्ट के बारे में पिन पॉइंट टारगेट करके चुन के मारा गया था। यहाँ ड्रोन अटैक का इस्तेमाल किया था अजरबैजान ने। अर्मीनिया की जो सेनाएं थी, उनके जो मैकेनाइज्ड फोर्सेस थी, उनको दिन के समय चुन कर उनके टैंकों को उड़ाया गया। ये एक छोटा सा एक एरियल एयरक्राफ्ट है जिसको हम क्वाडकॉप्टर बोलते हैं, जो कि एक केजी RDX लेके आया है। या इसके पहले हमने देखा है कि वो कोई छोटा सा ड्रग्स का पैकेट लेके आता था, यहाँ पर हथियार लेके आता था। तो ये टेररिस्ट की एक्टिविटी है। प्लस जो जम्मू के आसपास जो पुलिस ने साथ में लोगों को पकड़ा है, उसमें 6 किलोग्राम RDX भी सीज हुआ है और 3-4 जगह अलग अलग लोग भी पकड़े गए हैं। तो ये या तो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट किए गए किसी इन्फिल्ट्रेटर का काम है, या पाकिस्तान के कोई स्लीपर सेल्स जो इंडिया में ऑलरेडी बैठे हुए हैं उनका काम है, या फिर कोई हमारा अपना ही कोई मीरचंद या मीर जाफर या जयचंद है जो पाकिस्तानियों की मदद कर रहा है। तो रात का समय उसने इसीलिए चुना कि दिन के समय अगर ये ड्रोन मान लो 50 मीटर की हाइट पे उड़ता है और बड़े स्लो स्पीड से चलता है तो इसकी डिटेक्शन पॉसिबल थी। तो ये टेक्निकली स्पीकिंग ये ड्रोन अटैक नहीं हो सकता। ये कोई एक छोटे से क्वाडकॉप्टर जैसी छोटी सी चीज का कारनामा है। अब ये है कि अगर इस तरीके के कार्रवाई शुरू कर दी तो वो हम उसको कैसे काउंटर करेंगे। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत ही सीरियस चुनौती है जिसको हमने एड्रेस करना पड़ेगा।
नहीं नहीं विजय जी, मतलब आपके हिसाब से ड्रोन अटैक होता तो कहीं इतना जिस जगह को निशाना बनाया गया है, ऐसा कोई छोटा वो लोग नहीं कोई ऐसी जगह पसंद करते, कुछ बड़ा हो सकता था विजय जी आपके हिसाब मेरा से? कहना यह है कि कुछ बड़ा हो सकता था, क्योंकि पाकिस्तान के पास ड्रोन्स हैं चाइना से और टर्की से लिए हुए, तो कोई बड़ी बात होती। परंतु ये जो छोटा किया है, ये छोटा बड़े से ज्यादा सीरियस है, क्योंकि अभी ये छोटी सी जो चीज है ये कहीं पे भी की जा सकती है। ये किसी जी, इसका सेक्युलर तो इलाके यही पे एक की जा सकती है, विषय बना हुआ है जी इंस्टॉलेशन पे जी। की जा सकती है, जो आप शहरी लोगों के इलाका है, किसी किसी हॉस्पिटल पे की जा सकती है, क्योंकि ये इतनी आसान है करने में, क्योंकि ये कमर्शियली अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। જી 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 લલિત રાવલજી આપનું શું માનવું છે? વિજય સાગરજી જે રીતે જણાવી રહ્યા છે કે આનું ડ્રોન અટેકના પેશન્ટ જયારે ડ્રોન અટેક થયા છે તેમની પણ અમે અહીંયા વાત કરી છે, આપનું શું માનવું છે? વિજય સાહેબ સાથે હું થોડો એગ્રી છું, પણ આ મારી દ્રષ્ટિએ ડ્રોન એટેક નથી એવું કહેવાનું કોઈ કારણ નથી. આ એક ટેસ્ટ મોડેલ છે. આ પાકિસ્તાન આર્મી અને પાકિસ્તાન ISIS સંયુક્ત રીતે જોઈન્ટ થઈ અને સપોર્ટ આપી, ટેકનિકલ સપોર્ટ આપી અને ટ્રેનિંગ આપી અને ત્રાસવાદીઓ દ્વારા આ એક ટેસ્ટ મોડેલ એમને ઉભું કર્યું છે. અત્યાર સુધી આપણે જમ્મુ કાશ્મીરની સેન્સિટિવ બોર્ડર ઉપર સીઝ ફાયર થતા હતા. છેલ્લા 5-6 મહિનાથી આપણે સીઝ ફાયર નો અમલ થઈ રહ્યો છે, એટલે સીઝ ફાયર નથી થતા, પણ એમણે નવું રમકડું હાથમાં આવ્યું અને એ પણ ચાઇનાના સપોર્ટથી. ચાઇનાએ મોટા પ્રમાણમાં ભારતને ડિસ્ટેબલ કરવા માટે હવે નવું એમને હથિયાર આપ્યું, એક ડ્રોન છે, અને એના ઉપરાંત એમને ટર્કીએ પણ ડ્રોન આપ્યા છે. એટલે એનો ઉપયોગ થાય તો કેવું પરિણામ આવી શકે એનું એક આ ટેસ્ટ મોડેલ હતું. આના પહેલા પણ એ પાકિસ્તાન તરફથી ડ્રગ સપ્લાય કરવામાં અને આર્મ્સ એમ્યુનેશન સપ્લાય કરવામાં આપણી પંજાબની બોર્ડરે આ લોકો વાપરતા હતા, પણ આ વાપરીને એમણે ટેસ્ટ કર્યું અને એ ત્રાસવાદીઓ પાસે જે પિન પોઈન્ટ નકશાનું જે હોય ને, કદાચ એના પ્રી એમાં પ્લાન ફિક્સ કરવામાં કંઈક ચૂકરી ગયું હોય, બાકી આપણો જે એરિયા સિલેક્ટ કર્યો હતો એ પણ એટલો જ એક્યુરેટ હતો, પિન પોઈન્ટ હતો. ઇટ ઇઝ એરફોર્સ સ્ટેશન જમ્મુ તતવારી, જ્યાં હું 6 વર્ષ સુધી રહી ચૂક્યો છું. એ મારા વિસ્તાર થયું, એટલે ઇટ ઇઝ વેરી 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 વનરેબલ એરિયા હતો. અને કાલુચક ઉપર પણ આર્મીની બહુ મોટી બ્રિગેડ છે, અને ત્યાં જે પ્રમાણે એને ડ્રોન જોવામાં આવ્યા રત્નુચક ઉપર આ પાંડવીમાં આની 2 થિયરી ચાલે છે. એક થિયરી પાકિસ્તાન તરફી જે થઈ રહી છે, પાકિસ્તાનના એક લેફ્ટનન્ટ જનરલ ફિરદૌસ એમાં ઇન્વોલ્વ હતા અને એના દ્વારા આદેશ આપી બ્રિગેડિયર ઇરફાનને આના માટે સ્પેશિયલી ડિટેઇન કર્યા હતા ને. એ બ્રિગેડિયર ઇરફાને ટ્રેનિંગ આપી અને ત્રાસવાદીઓને આપણી આરએસપુરાની બોર્ડર થી અંદરની સાઈડે પાકિસ્તાન સાઈડે આવેલો મંગલા વિસ્તાર છે, એ મંગલા વિસ્તારમાંથી આ ડ્રોન ઉડીને આવ્યા હોય એવી એક થિયરી ચાલી રહી છે. અને બીજી થિયરી તેના લોકલ સર્કલમાંથી પણ ઉડાડી કોઈએ કર્યું હોય, અને લોકલ સર્કલમાંથી કરવા માટે જો જવાબદારી ગણવામાં આવે તો એ મહેબૂબા મુફ્તીએ જે આપણા વનરેબલ ડિફેન્સ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટની આસપાસ આપણા કહેવાતા શાંતિદૂતોને લાવીને જે કોલોનીઓ બનાવીને વસાવ્યા છે, અને એમના દ્વારા આ બધા કોઈ પણ, ચાહે નગરોટાનો કેસ હોય, કાલુચકનો કેસ હોય, ઇવન જમ્મુનો કઈ પણ જે પણ હુમલો થાય છે એમાં ડાયરેક્ટ શંકાની સોય ત્યાંથી નીકળે છે અને ત્યાંથી પકડાય પણ છે, ત્યાંથી વિસ્ફોટકો પણ પકડાય છે. આ ગઈકાલે પરમ દિવસે ત્યાંથી નરવાલ વિસ્તારમાંથી પકડાના 2 જણા, એમની પાસેથી 6 કિલો વિસ્ફોટક નીકળ્યું છે. એટલે એ જે જમ્મુ કાશ્મીર વિસ્તાર, જમ્મુ વિસ્તારમાં પર્ટિક્યુલરલી આર્મીના એસ્ટાબ્લિશમેન્ટની આસપાસ જે શાંતિદૂતોનો વસાયા છે એને તાબડતોબ દૂર નહીં કરે ત્યાર સુધી આ ખતરો આપણને બનેલો રહે. રાવલજીના માन्या प्रमाणे विजय भाई आपे सामने અત્યારે कि जैसा कि वो बता रहे हैं कि ये एक टेस्ट मॉडल हो सकता है, और इसी के साथ आपने जो जगह की बात की कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी ऐसी जगह वो पसंद करते, लेकिन जैसा कि ललित रावल जी कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि उनसे कोई मिस्टेक हुई हो, और जिस जगह की वो बात कर रहे हैं ललित रावल जी ने बताया वहां रह चुके हैं, वहां बहुत बड़ी विकेट है हमारी सेना की, तो ये एक बड़ा अटैक हो सकता था, लेकिन समझ सकते हैं कि शायद कोई मिस्टेक की वजह से ये बचा हो. तो वो ललित रावल जी का कहना है कि ये एक टेस्ट मॉडल हो सकता है.
आपने ठीक बोला, जो मेरे साथी पैनलिस्ट ने बोला कि एक टेस्ट मॉडल था, वो देखना चाहते हैं कि कैसे करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु जो अगर ड्रोन अटैक होता तो टारगेट जो अभी ये जो जम्मू की एयरफील्ड है, मैं इस वक्त जम्मू से ही बोल रहा हूं आपके सामने, और मैं एयर डिफेंस ऑफिसर हूं आर्मी में, एयर डिफेंस मेरा काम है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जम्मू की एयरफील्ड जो आईबी से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है, उसको एंगेज करने के लिए पाकिस्तान आर्टिलरी का इस्तेमाल भी कर सकता है, और यहाँ पे कोई फाइटर डिप्लॉयमेंट नहीं है। तो इसलिए इसको अगर इस जगह को चुनना, इसका मतलब ये कोई आर्मी की, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से नहीं था, उनके आईएसआई के टेररिस्ट कर सकते हैं, जो कि टेस्ट केस कर रहे थे कि करके देखते हैं। और उसके बाद ये जो उन्होंने विद इन द टेक्निकल एरिया ऑफ एयरफोर्स के अंदर जो उनके टारगेट जहां पे बम फटे हैं, वो बिल्कुल ये कोई गलती से उनका कोई ये नहीं, चूके नहीं है। वो एक्चुअली ये जो क्वाडकॉप्टर की कैपेबिलिटी वही है कि वो पिन पॉइंट बॉम्बिंग नहीं कर सकता, जबकि ड्रोन प्रिसाइज बॉम्बिंग कर सकता है विद सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.1 मीटर, यानी कि जो उसकी एक्यूरेसी है बहुत ज्यादा है। अब ये पॉइंट ये है कि जम्मू की आसपास जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, एयरफोर्स एस्टैब्लिशमेंट है, आर्मी एस्टैब्लिशमेंट है, इनको क्यों चुना गया? इसका कारण ये है कि 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटाया गया, 35 हटाया गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यूटी के ऊपर जो कंट्रोल था वो बहुत स्ट्रिक्ट आया, और जो सुरक्षा एजेंसीज थी उनका तालमेल बढ़ा। तो ये सारी की सारी जो इंसिडेंट्स है मिलिटेंसी के, ये बहुत कम हो गए। परंतु जैसे ही प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, तो जो पाकिस्तानी आका थे या जो उनके टेररिज्म के जो उनके टूल्स थे, या इवन चाइनीज फॉर दैट मैटर, वो बोले कि जम्मू कश्मीर में अभी नॉर्मल सी हाल हो रही है, इसलिए उन्होंने ये टेरर बढ़ा दिए। और फिर उनको ये भी पता था कि श्रीनगर में हो रहा है, जम्मू में नहीं, तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने जम्मू का इलाका चुना, और उसके लिए उन्होंने ये टेस्ट केस किया देखने के लिए कि भाई इसमें हमको कितनी सक्सेस मिलती है। मैं आपको ये बता दूं कि ये संडे को रात को 1:30 बजे रात को हुआ है, संडे मंडे की रात को। उसके बाद जम्मू में कई जगह पर ये 2-2 ड्रोन्स 2-4 दिन से देखे जा रहे हैं। प्लस लोकल पुलिस ने बहुत लोगों को हिरासत में लिया है जो इसमें जिनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो इसलिए ये मोरलेस कोई किसी लोकल जगह से, क्योंकि इस डिवाइस की रेंज कम है, एक्यूरेसी कम है, आसपास से ही कहीं पे ये किया जा सकता है। जी विजय जी, ये इतना टाइम क्यों लगा होगा? जैसे कि हमने बताया कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद ही सब कुछ शांत था, और उसके बाद अभी ये क्यों समय पसंद किया होगा, क्या लगता है? टाइम देखिए, ये बड़ी सीधी सी बात है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने ऑल पार्टी मीट बुलाई, इसका मतलब कि उनका जो रुख था पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट करने का था, डेमोक्रेसी लाने का था, शांति बहाल करने का था। और ये अगर जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो जाए तो पाकिस्तानीज और या उनकी आर्मी या चाइनीज, उनका तो सारा काम ही खत्म हो जाता है, उनकी रेलेवेंस कोई नहीं रहती। तो उन्होंने बोला कि इस शांति प्रोसेस जो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया है, इसको डीरेल करें, और उसके लिए उन्होंने श्रीनगर के बजाय जम्मू को चुना, जो कि पहले से ही शांत था। बोले यहाँ हम अशांति फैलाते हैं, और चूंकि इस अटैक से मुस्लिम नेम्स आएंगे तो यहाँ पे कम्युनल जो संभावना है, वो भी कम्युनल भेदभाव बढ़ेगा। तो उनके दो निशाने लगते थे एक ही तीर से। इसके लिए उन्होंने ये जम्मू के आसपास एयरफोर्स स्टेशन को, उसके टेक्निकल एरिया को चुना। જી લલિત રાવલજી, આપનું શું માનવું છે બાબત પર? ત્યારે વિજય સાથે જે પ્રકારે જણાવી રહ્યા છે, બિલકુલ હું વિજયજી સાથે સંપૂર્ણ સહમત છું, અને સહમતિ સાથે હું એ કહું કે જે શાંતિ દૂતો આપણા ડિફેન્સ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટની આસપાસમાં વસાવવામાં આવ્યા છે, એમના દ્વારા અત્યાર સુધીમાં કેટલા બધા થઈ ચુક્યા છે એટેક, એટલે એમાં કોઈ પણ નવાઈ નથી, એ કયો ચૂકે। અને આપણું કોઈ પણ ડિગ્નિટરી જયારે પણ કાશ્મીર વેલીમાં મુલાકાતે જાય એ વખતે, અત્યારે આપણા રક્ષા મંત્રી રાજનાથસિંહજી જયારે કાશ્મીર જમ્મુ કાશ્મીરમાં છે એ વખતે આ છે। અને આમાં બે થિયરીની આપણને વાત કરી કે પાકિસ્તાન તરફથી પણ હોઈ શકે, કે પાકિસ્તાન તો અત્યારે હાલ દિવાળીયો દેશ છે, ફાઇનાન્શિયલી બેન્કરપ્ટ છે, પણ એ ચાઇનાના પ્રેશરથી ચાઇનાએ જે એમના ભીખમાં આપેલા ડ્રોન છે એનો ઉપયોગ કરીને, અને એના સિવાય એ જે સોફિસ્ટિકેટેડ સારા જે ડ્રોન છે પિન પોઈન્ટ એટેક કરવા વાળા, એના બાજુએ રાખીને આ એક ટેસ્ટ મોડલ એમને કર્યું છે। પણ ટેસ્ટ મોડલ એ એટલું જ પેલા કરતા પણ વધુ ઘાતક છે। આપણે ભારત સરકારે ખૂબ સાવચેત રહેવાની જરૂર છે, કારણ કે આનાથી વધી હવે આગળ મોટો હુમલો કરી શકે, પિન પોઈન્ટ એટેક પણ કરી શકે, અને આને રોકવા માટે હવે આ નાના ડ્રોનને રડારમાં પિકઅપ કરવો એ ડિફિકલ્ટ છે। લો લેવલ હાઈટે મૂવ કરતા ઓબ્જેક્ટને ડિટેક્ટ કરવો ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ। એટલે એના માટે આપણે જ્યાંથી એ ઉડાડતા હોય પાકિસ્તાનમાંથી, જે પણ જગ્યાએથી,
એ જગ્યાને નેસ્તનાબૂદ કરવાની જરૂરત છે. જી લલિત રાવલજી, હવે અત્યારે વાત જ્યારે ભારત દેશની આવે છે, આપ આ વાત માની રહ્યા છો કે આ ડ્રોન હુમલો, ડ્રોન અટેક જ આને કહી શકાય, એટલે કે ક્યાંક આપણે માની શકીએ છીએ કે હવે આ જે આતંકીઓ છે એ આ ડ્રોનને આતંકનો હથિયાર બનાવી રહ્યા છે. આપની પ્રમાણે જો આપણે આ વાત સાથે સહેમત છીએ, જો આ ક્લિયર થાય છે, તો હવે ભારત દેશ કેટલું તૈયાર છે? આપણે તો કરોડો રૂપિયાનો રાફેલ લઈ આવ્યા, એ લોકો ડ્રોન થી હુમલો કરી રહ્યા છે. તો હવે શું કરીશું આપણે કે અહીંયા એક તરફ આપણે ખર્ચ કર્યો છે રાફેલ પર, અને હવે આવી રહ્યું છે ડ્રોન થી કરવામાં આવી રહ્યું છે આતંકી હુમલો, તો હવે ભારત દેશ શું કરશે? ભારત દેશની 2014 પહેલાની મનોવૃત્તિ જુદી હતી અને 2014 પછીની મનોવૃત્તિ ખૂબ જુદી છે. આપણે એમના કોઈ પણ અડપલાને બહુ જ વળતો કડકમાં કડક ઘાતક પ્રહાર આપ્યો છે. એ આપણે તમે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક પણ જોઈ છે, એર સ્ટ્રાઇક પણ જોઈ છે, એટલે એમાં કોઈ પાછું પડે એમ નથી. પણ આ જે ડ્રોન હુમલાથી એ પાકિસ્તાને નવી જે શરૂઆત કરી છે, એના માટે પણ સૈન્ય બળ એટલું જ તૈયાર છે. આપણી પાસે એટલી ટેકનોલોજીકલી એના કરતા પણ વિશેષ કેપેબિલિટી વાળા ડ્રોન આપણી પાસે છે. આપણે વી કેન રિટેલિએટ ઇન ધ વેરી સેમ ફેશન. પણ એ બધાના માટે એ સરકારની ઈચ્છા શક્તિ જરૂરી બને છે, અને સરકાર ઈચ્છા શક્તિ દાખવશે જ, અને 100% એમાં કોઈ આમાં બાંધછોડ કરશે નહીં કે હજી બીજા કોઈ હુમલાની રાહ જોવાની એ દરકાર નહીં કરે. અને 100% ભારત સરકાર કંઈકનું કંઈક કડક પગલું લઈ અને આ વિશે કરશે એવી મને 100% આશા છે. विजय सागर जी, ललित भाई પણ હમણાં વાત કરી कि आज जो हमलो है ये जो अटैक है, अभी जैसा कि उन्होंने बताया कि अक्रॉस द बॉर्डर ही या यानी लोकल एरिया में से भी हो सकता है, जैसा कि अभी ललित रावल जी ने भी बात की, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये ड्रोन लोकल एरिया में से भी आ सकता है या अक्रॉस द बॉर्डर ही ये ड्रोन बाहर से ही आया है? क्या लगता है? देखिए, जैसे आईईडी ब्लास्ट टेररिस्ट कहीं पे भी कर सकते हैं, उसी तरह से अभी ये वाला जो क्वाड कॉप्टर है ये कहीं पे भी जा सकता है, और वहां पे इसके पकड़े जाने की संभावना बिल्कुल जीरो है. और पाकिस्तान ने ड्रोन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि अगर वो पाकिस्तानी ड्रोन इस्तेमाल करेंगे तो वॉर डिक्लेरेशन हो जाएगा. तो उसको वॉर को डिक्लेयर नहीं करना है, हमने प्रॉक्सी वॉर करनी है, हमने टेररिज्म फैलाना है. तो जिस तरह से वो आदमी फिजिकली जाकर के आईडी लगाते थे फिर ब्लास्ट करते थे, उसी तरह से आप छुप के कहीं पे भी बैठे ड्रोन उड़ाएं, थोड़ा सा ये क्वाड कॉप्टर को उड़ाएं और किसी भी इलाके में जाके उसको जमीन पे फेंक दें, और जैसे ही डेटोनेशन इम्पैक्ट से डेटोनेशन हो जाएगी और धमाका हो जाएगा. अभी इसकी प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा है कि ये सिविलियन इलाके में, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, किसी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन में कहीं पे भी हो सकता है. तो इसलिए इसके लिए जो पूरा हमारा सिक्योरिटी अपरेटस है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो इतना लिया है अपना इनिशिएटिव, आर्मी को, आर्म फोर्सेस को आगे बढ़ाने के लिए, आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, ये उसको अभी हमने अपनी सोच को बदलना पड़ेगा. और आर्मी के पास इस वक्त इसके तोड़ हैं. हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स हैं जिससे हम ऐसे ड्रोन्स को या ऐसे क्वाडकॉप्टर्स को सॉफ्ट किल, मतलब उनकी जैमिंग कर सकते हैं, उनके जो सिस्टम्स की जैम कर सकते हैं, या उनको काइनेटिक किल्स मींस एक्टिवली उनको गिरा सकते हैं. परंतु वो इतने प्रोलिफरेटेड नहीं है, क्योंकि उनकी डिप्लॉयमेंट थी वो सिर्फ पाकिस्तान थ्रेट के हिसाब से थी. परंतु अभी टेररिस्ट की जो क्वाडकॉप्टर की नई थ्रेट आई है, इसके लिए अभी हमें सोचना पड़ेगा और एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी और फिर उसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी के बाद ये इस किस्म के अटैक्स की जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ गई है. और हमने जम्मू में ही देखा है, मैं जम्मू में ही हूँ, और मैंने देखा कि काफी सारे ड्रोन उड़ते नजर आए हैं और काफी सारे लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है. विजय जी, लेकिन यहाँ पर ऐसी जानकारी मिल रही है, जैसा कि आप कह रहे हैं ड्रोन अटैक नहीं है, लेकिन यहाँ तक सूत्रों से माहिती मिल रही है कि ये जो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ने ही ये ड्रोन भेजे, और ये चाइना ने ही पाकिस्तान को बेचे हैं, और वहां से यानी कि चाइना ने भारत के खिलाफ जो किया है वो इस तरह से कि ये जो ड्रोन है वो चाइना से पाकिस्तान आया, और पाकिस्तान ने इन ड्रोन का उपयोग किया है भारत के खिलाफ. तो यहाँ तक की भी जानकारी मिल रही है. देखिए, चाइना का जो इस वक्त सवाल है, चाइना अपने आप को एक वर्ल्ड पावर बनाने की सोच रहा है, वो अपने आप को क्लीन रखना चाहता है. अगर उसने कल को कोई गड़बड़ फैलानी है कहीं पे भी, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट, तो वो पाकिस्तान को प्रॉक्सी बना के करेगा. और पाकिस्तानी आर्मी आगे आईएसआई में उनके जो मुजाहिदीन है उनको प्रॉक्सी बना के करते हैं. तो ये गेम चल रही है, और चाइना अपने आप को क्लीन रखना चाहता है कि उसके ऊपर कोई ब्लेम ना आए.
और इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ये ड्रोन नहीं है, क्योंकि ये एक गलत यूसेज हो रहा है टर्म का पूरे मीडिया में। ड्रोन का मतलब कुछ समथिंग इज टोटली डिफरेंट। और क्योंकि मैं इस बात का एक्सपर्ट हूं, मैं एयर डिफेंस वाला बंदा हूं, तो इसलिए मैं इसको ड्रोन नहीं कहना चाहता इसको, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं ये एक खिलौना है जो कमर्शियली अवेलेबल है और बहुत ही डेंजरस है, जो ये बल्कि ड्रोन से ज्यादा डेंजरस है। ड्रोन एक समय में एक ही टारगेट निकालेगा और वो वॉर को डिक्लेयर कर देगा। इसमें वॉर ही डिक्लेयर नहीं होगी और कोई भी आदमी पकड़ा भी नहीं जाएगा, किसी के वो पिन पॉइंट ब्लेम भी नहीं होगा। इंडिया जो डोजियर सौंपता है पाकिस्तान को, ISI को कि आपने कराया, यहाँ पे उसका बिल्कुल चांस जीरो है। तो ये पाकिस्तान के लिए या टेररिस्ट के लिए एक किस्म की विन विन सिचुएशन आ जाएगी। इसलिए हमें इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बहुत ही जल्दी और जबरदस्त कारगर एक कार्रवाई करने की जरूरत है। विजय जी, ये ड्रोन नहीं है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो ये एक सिर्फ एक डर फैलाने का, डर का माहौल फैलाने का एक प्रयास है, ये ऐसा भी मान सकते हैं। लेकिन कमिंग डेज में हम कह सकते हैं इन फ्यूचर हमें तैयार रहना पड़ेगा। आज ये ड्रोन नहीं है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि आप भी टेक्निकली बता रहे हैं कि ड्रोन से इतना बड़ा अटैक हो सकता है, और जब ये जो छोटा सा जो भी हो, ये जिसे हम जो भी समझें, जो अगर ये भेजा जा सकता है तो ड्रोन भी भेज सकता है पाकिस्तान। नहीं, ड्रोन भेज सकता है, पर मैं बता रहा हूं ना, अगर पाकिस्तान ड्रोन भेजेगा तो दैट विल बी एक्ट ऑफ वॉर, तो वो पाकिस्तान नहीं कर सकता। आज की डेट में पाकिस्तान के पास इवन आर्टिलरी शेलिंग के पैसे नहीं है कि बम फेंक सके, इसलिए उसने सीज फायर के लिए मांग की है। ये एक शैम सीज फायर है। बॉर्डर तो शांत है थोड़ा थोड़ा, परंतु टेररिस्ट को अभी भी इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है। टेररिज्म के एक्ट्स जो हैं वो अभी भी किए जा रहे हैं। तो फिर किस किस्म का सीज फायर है ये पाकिस्तान की तरफ से? ये दुनिया को बरगलाने का एक तरीका है। ओके ललित रावल जी, વિજય जी, ટેકનિકલી આ જે પોઈન્ટ ટેકનિકલી આ વાતને સમજે છે, એટલે સમજાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે આ ડ્રોન નથી, પણ આ એમને કહ્યું કે આ કોઈ મોટો રમકડો છે ને, માત્ર ને માત્ર ભય ફેલાવવા માટે અત્યારે આ કરવામાં આવ્યું છે। જો ડ્રોન હોત તો આ મોટો અટેક થઈ શકે છે ને। હા, ચોક્કસપણે એમની ચિંતા છે કે આવું આવનારા દિવસોમાં થઈ શકે છે, તે માટેની તૈયારી આપણે રાખવી પડશે, પણ આ ડ્રોન અટેક નથી। લલિત રાવલ जी, બ્રિગેડિયર સાહેબ સાથે હું સંપૂર્ણ સહમત છું કે આ ડ્રોન નથી। ડ્રોન એનું આખું એટેક નું જુદું જ હોય, એ પિન પોઈન્ટ કરે, પણ આ જે કૃત્ય કરવામાં આવ્યું છે એ પાકિસ્તાનના ઇન્ટેલિજન્સ ન્યૂઝ ઉપરથી જે મેં જાણ્યું છે એ ઉપરથી હું કહું છું કે ત્યાંના એક લેફ્ટનન્ટ જનરલ ઇન્વોલ્વ હતા, અને લેફ્ટનન્ટ જનરલે એક બ્રિગેડિયર ઇરફાનને ઓર્ડર આપી અને ત્રાસવાદીઓને ટ્રેન કરી અને આ રમકડાનો ઉપયોગ કરાવડાવવામાં આવ્યો છે। હવે આ રમકડાથી ઉપયોગ કરીને જો એ સફળ થાય તો આગળ ઉપર કેટલું નુકસાન કરી શકે એ રોકવાની અત્યારે તાતી જરૂર છે। અને એ રોકવા માટે અગર પાકિસ્તાને ન પણ કર્યું હોય તો ત્યાંના સ્થાનિકો, હવે સ્થાનિકમાં કોણ હોઈ શકે એ પણ એક ચિંતાનો વિષય છે, બહુ મોટો ચિંતાનો વિષય છે। આપણા જેટલા વનરેબલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ છે એના માટે ખૂબ ચિંતાનો વિષય છે, એટલે એના માટે તાકીદે પગલા ભારત સરકારે ભરવા પડે। चिंता का विषय है, और इन फ्यूचर जैसा कि हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं, इन फ्यूचर ये बहुत बड़ा अटैक हो सकता है, तो भारत देश को किस तरह से तैयार रहना पड़ेगा। इसी के साथ जैसा कि हमको जानकारी मिल रही कि DRDO ड्रोन एंड एंटी ड्रोन दोनों ही टेक्निक पर बहुत पहले से काम करना शुरू कर दिया है, तो और किस तरह से तैयार रहना पड़ेगा, और कैसे अटैक हो सकते हैं, कितना खतरनाक साबित हो सकता है, भारत देश कितना सुरक्षित है, और साथ ही साथ ऐसा अगर अटैक होता है तो हम कितने तैयार हैं। जी विजय जी, देखिए, जहां तक हमारी तैयारी इसके अगेंस्ट है, इसमें बहुत सारे लाकुनाज हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ये ड्रोन जो यहाँ इवन ये क्वाडकॉप्टर, पहली बात ये बॉर्डर कोई 20 किलोमीटर का दूर है, उतना दूर चल के इस छोटी सी स्पीड पे आना मुश्किल है, परंतु अगर आता भी है तो इनको रेडार पे लेना रेडार पे पकड़ना बहुत मुश्किल है। और इनके अगेंस्ट जो हमारे हवाई जहाज हैं, मिसाइल्स हैं, गन्स हैं, उनको फायर करना और उनको डिप्लॉयमेंट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसको भी नॉन कन्वेंशनल तरीके से ही डील करना पड़ेगा। इसके लिए हमको जगह जगह पर कुछ ऐसे जैमर्स लगाने पड़ेंगे जो इसके ऑनबोर्ड सिस्टम्स को, अपलिंक फ्रीक्वेंसी है, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी है, प्लस उसके अंदर जो ऑनबोर्ड सिस्टम्स हैं उनका जो चलने का तरीका है उनको डिस्ट्रॉय करना है, उनको जैम करना है, उनको नाकाम करना है, ताकि ये काम करना बंद कर दे। और या फिर हमको एक्चुअली कोई मिसाइल या कोई गन फायर करके इसको उड़ाने की जरूरत है। तो वो कैपेबिलिटी आज की डेट में इंसर्जेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से या काउंटर इंसर्जेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से या मिलिटेंसी को फाइट करने के
पॉइंट ऑफ व्यू से वो अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये थ्रेट जो है ये बॉर्डर के ऊपर या जम्मू में ही नहीं है, ये थ्रेट ऑल ओवर द कंट्री कहीं पे भी हो सकती है। तो उसके हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज सोचनी पड़ेगी। और मैं बड़ा खुश हूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और हमारे जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, यहाँ पे थिएटराइजेशन की बात चल रही है, तो ये सब जो मुद्दे उठा रहे हैं उसमें वो इस पॉइंट को भी ऐड करेंगे, इसको भी एड्रेस करेंगे, और उसके लिए हमें जो भी कारगर कदम उठाने हैं, मैं आपको यहाँ पे 10 पॉइंट्स सजेस्ट कर सकता हूं, परंतु वो हमारी स्टैब्लिशमेंट ने सोचना है कि उनके पास उतने पैसे हैं, उनके पास उतनी ताकत है, स्ट्रेंथ है, करने के लिए नहीं है। तो वो जो कमांडर्स ऑन ग्राउंड है, हम तो खैर रिटायर हो चुके हैं, बट जो कमांडर्स ऑन ग्राउंड है वो अपनी स्वॉट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ वीकनेसेस को देखेंगे और उसके हिसाब से फुल कंट्रोल ऑफ दिस एंड दे विल एलिमिनेट दिस थ्रेट। जी, श्योरली इसकी शुरुआत भी हो चुकी होगी। अगर हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में ये इतना खतरनाक साबित हो सकता है, तो जो डिफेंस है उसने इसकी तैयारियां शुरू कर दी होगी। समय यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो मैं हमारे साथ जुड़ा है ललित रावल जी, विजय सागर जी, आप बने हमारे साथ चर्चा में जुड़ा है, तो आपको खुद को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। તો દર્શક મિત્રો, આજે આપણે ચર્ચા કરી છે જમ્મુમાં જે હુમલાઓ જોવા મળી રહ્યા છે અને ખાસ કરીને અહીંયા પ્રયાસ કર્યો છે વાત કરવાનો કે આ ખરેખર શું પાકિસ્તાનનો આતંકી હુમલો છે, આ ડ્રોન હુમલો છે, અને ટેકનિકલી સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। જે રીતે અહીંયા ચર્ચા કરી છે કે આ કંઈક અલગ હોઈ શકે છે, એક રમકડું હોઈ શકે છે, પણ હા ચોક્કસપણે આ એક ભય ફેલાવવા માટેનો પ્રયાસ હતો। એનાથી અંદાજો લગાવી શકાય છે કે ડ્રોનથી કેટલો મોટો હુમલો થઈ શકે છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને હવે આપણા ડિફેન્સે પણ ચોક્કસપણે તૈયારીઓની શરૂઆત કરી દીધી છે। તો આ સાથે જ ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં અત્યારે બસ આટલું જ। ફરીથી મળીશું એક નવા વિષય સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।